कार्नट पे हमें न्यूमेरिकल करने थे। थोड़ा बहुत कार्नट याद है? हाँ जी, याद तो है। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक ये कार्नोट साइकिल। और के ऊपर न्यूमेरिकल। सो दिस वाज P1 V1, this is P2 V2, P3 V3, P4 V4. Heat is entering here and heat gets exhausted during the second one. और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। एफिशिएंसी, एक तो हमने प्रूव करा था कि V3, इट वाज या V3 बाय V1, मतलब ये और ये is equal to V, sorry, V3 by V2, sorry, V3 by V3 and V2 during adiabatic is equal to uh, V4 by V1. V3 by V2, V4 by V1. This is known as the adiabatic expansion, adiabatic expansion ratio. और दूसरा जो है, ये वाला जो adiabatic है, ये वाला V4 to V1, where the volume reduces, both are equal. This is also known as adiabatic compression ratio, and this is represented by rho. Yes, efficiency, which we calculated, which actually reduced to 1 minus T2 by T1. So since this is T2 and T1, they are associated with the volumes. So we can also write it as 1 minus 1 upon rho raised to power gamma minus 1. वो जो TV गामा का जो रिलेशनशिप होता है, T और V का जो रिलेशनशिप होता है, उसको यूज करके if you remove temperature and you want to write efficiency with the help of T, uh, TV gamma minus 1 is equal to constant, right? So if you use this equation and you use T1 and T2, so this is isothermal happening at temperature T1, this is happening at T2. We are not going to get into derivation, but the efficiency can also be rewritten as the adiabatic compression. This is of course the adiabatic constant, Cp by Cv. क्विक, यहाँ से हीट एंटर होती है जब इसको सिलेंडर को रिजर्वॉयर के ऊपर रख देते हैं, फिर रिजर्वॉयर से हटा के इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देते हैं, थोड़ी देर एक्सपैंड होने देते हैं, उसके बाद उसको सोर्स सिंक के ऊपर रख देते हैं, loses heat and is compressed, and then it is again kept back on the insulating stand and further compressed, so, but no heat exchange happens. So isothermal में जो है Q1 Q2 जो भी है वो होता है. Let's say how do the numericals come? Very simply speaking, if
You have a heat engine, for example. Okay, so just there is a heat engine, and what it does, it rejects 60% of the heat supplied to the surrounding. जितनी भी हीट मिलती है उसकी 60% वो सराउंडिंग को दे देता है. Okay, surrounding is then acting as a sink. Low temperature T2. Okay, and what is the efficiency? What is the efficiency of the engine? That is the question. So if you have 100 joules coming into the engine, uh, some work is done, useful work, and the 60%, 60 joules is rejected, and 40 joules therefore is the useful work done. If you have to find the efficiency of the engine, the efficiency of the engine is a total work done per unit heat supplied, which is your expenditure. So 40 by 100.4. So you are efficient to the extent of 40%. परसेंटेज में निकालना है तो 40% efficient. And heat is rejected to the sink, which is this part of the curve. ठीक This है. is getting rejected to the sink. And this is the heat which is coming inside the engine from the source. The heat reservoir of infinite thermal capacity. And this is a T1. This is your sink. T, T. और क्या पूछ सकते हैं आपसे? Okay, so there is a motorcycle, and the motorcycle delivers power, okay, of say it delivers a power of 20 kilowatts, okay, which means 20,000 joules per second. How it delivers power is by consuming petrol. So it consumes petrol. And of course, everything is happening inside the engine. And the consumption of petrol is happening at maybe 2.2 kgs per hour. So every hour it consumes so much. You have to calculate the efficiency of the motorcycle engine, given that the rate of heat rejection, which is your exhaust, right? So heat rejected by the motorcycle, which it could not use for useful work, is the calorific value expressed in calorific value and is 35.5 megajoule per kilogram. This is the heat which is lost by the exhaust. So you know Q2 actually, this rejection. This W is upon Q. Q. हाँ, तो power पता है हमें. हम्म. It consumes the so much Power 2 is kgs work done rate per of unit work done, time. ना? हाँ, rate of work done. तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू अगर हमें दी हुई है 1 किलोग्राम 1 kilogram of fuel, okay, contains 35.5 megajoules. So let's first find out what is a heat which is, so 2 kilograms is entering the engine. 2 किलो घुस रही है, right? So first let's calculate the how much heat is entering the engine. 2 किलोग्राम के हिसाब से per hour basis पे. So this is 2 uh, 2 kilograms multiply by 35.5, because 1 kilogram of petrol contains this much. वैसे तो इसने exhaust
sorry, you also need to find the heat rejected. Sorry, okay. The heat rejected is also to be found out. The calorific value of petrol is given. This is given. Calorific वैल्यू ऑफ पेट्रोल कैलोरी कितना मतलब 1 किलोग्राम कितना एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर आप सोल्यूशन की बात करें तो दो 2 किलोग्राम 1 घंटे में बर्न हो रहा है, मतलब 1 घंटे में 71 मेगा जूल्स is getting burnt per hour basis inside the motorcycle. So 71 into 10 raised to power 6 divided by 3600 is the Q1 which is being supplied to the पेट्रोल बर्निंग से जो हो रहा है, और जो पावर प्रोड्यूस हो रही है, जो वर्क आप ऑब्टेन कर पा रहे हो उससे, विच इज दिस इज द एक्चुअल वर्क इट इज एबल टू डू, राइट। सो तो बट ये दिया हुआ है उसमें W/T1 में, और एक्चुअली जो Q1 भी है वो भी पर सेकेंड बेसिस पे दिया हुआ है। सो ये जो है 20,000 पर किलोवाट, मतलब किलो जूल जूल पर सेकेंड है, राइट। दिस इज जूल पर सेकेंड, एंड दिस ऑल्सो वी हैव कन्वर्टेड इनटू joule per second basis, right? So this is also joule per second basis. And so this is your work done per second basis, and this is a fuel burning per second basis. So if we subtract these two, Q2, or we can find the efficiency straight away, saying that the work which is being done per second basis is 20 into 10 raised to power 3 divided by 71 into 10 raised to divided by the total heat supplied per second basis into 3600. So if we solve this, 2 into 36 into 10 raised to power 6 upon 71, ये तो कुछ गड़बड़ी होगी, 10 raised to power 6, ये कुछ ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो गई है, वन तो से ज्यादा, ओवर एफिशिएंट हो गया। 100 से ऊपर चली गई एफिशिएंसी इसकी। ये सर क्या हो गया? एक मिनट दिखाना, जो किलोवाट है। तो 20,000 हो तो गया ना। किलोवाट, एक मिनट, किलोवाट सर वो नहीं होता, क्या कहते हैं, 1000। 20 into 10⁻³ ले जूल्स। लिया 20,000, ओके। लिया, ठीक है। आई थिंक the mistake is in the calorific value. Let's take I have cooked the questions, 3 kgs ले लेते हैं इसको, 3। सो यू हैव कुक्ड द क्वेश्चंस। और 3 लेने से तो नहीं गड़बड़ हो जाएगी, नहीं, हिट मार नहीं होगी। 3 3 इंटू ओके, 35.5 कितना हो मतलब जाएगा? 105.5। 106। नहीं, 105.5 है। क्यों, इसका डेढ़ बनेगा ना एक्स्ट्रा, अरे सत अच्छा, है ना? हाँ 106। यस, तो 106 यहाँ लिख देते हैं, 106। बट फिर भी ओवर एफिशिएंट तो अभी भी है। नहीं, अरे 106.5, ये आ गया 106.5, ये कट गया। 72 अपॉन 106.5 इंटू 100 परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। सो काफी। योर इनिशियल थिंकिंग शुड बी दैट आई एम एबल टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल। वर्क डन कहाँ हो रहा है? लिखा था पावर डिलीवर्ड बाय द मोटरसाइकिल। सो कुड यू थिंक कि यार ये मोटरसाइकिल काम कर रही है, तो वर्क डन ये होगा, पर सेकेंड में दे दिया इन्होंने, विच इज फाइन। और फ्यूल बर्निंग इज बेसिकली द हीट सप्लाइड, Q1, और Q2 निकालना है, विच इज हाउ मच इज द heat rejected per second basis. So subtract the two. So Q1 minus W will give you the heat rejected to the surrounding, which is coming out of the exhaust of the motorcycle. तो शुरू में you should get friendly and you should concentrate on finding out कि यहाँ पे कहाँ पे वर्क डन है, कौन सी हीट रिजेक्टेड है, कौन सी हीट वो है सप्लाइड
by the source. Basic questions, just being able to apply eta is equal to, obviously you will have opportunity to use 1 minus T1 by T2, वो वाले भी आएंगे, बट शुरू में टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं होते, शुरू में सिर्फ Q1 Q2 W पे फोकस रहता है. So let's say there is a heat engine, okay? Now there is a heat engine and the heat engine receives 60 kilocalories of heat. Okay, directly लिखा हुआ है from the source per cycle basis. Okay, it operates with an efficiency of 20%. Determine the work done obtained from the engine. Second, calculate the heat rejected to the sink per cycle basis. Obviously, everything happens in one cycle. W, Q1, Q2. All of these are per cycle basis. Right? Efficiency is given. Work done Q2. $60 calorie of heat from the source per cycle basis. Q1. Source मतलब Q1. Q1 minus W ये दिया हुआ है. is equals to Q2. Right. So 20 Q2 is equals to W. Right. $60 calories है. अच्छा ये कितने 2000 के, अच्छा 2000 नहीं. Not very difficult. ये क्या डाला है? मैथ्स कर रहा था तो बस इसका. Efficiency. Right? Why 0.2 अगर efficiency है, तो why is this Q2? ये 200 है नहीं Yeah. Efficiency is efficiency. 20%. जो 20% वो 0 लग रहा है वो. है.
हो गया। एफिशिएंसी का यूज कर लिया, डब्ल्यू निकाल लिया, 0.2 इंटू ये क्या लिखा है? एफिशिएंसी इज नॉट W upon Q2, it is Q1, ए, total heat supplied. अब हीट सप्लाइड होती है तो हीट रिजेक्टेड भी बना दी है। पूरी साइकिल में जो हीट मिलती है दैट इज Q1, 60। Q1 है 60। एफिशिएंसी तो उस पे होगी ना, मिला कितना और काम कितना करा। मिला कितना, दिया कितना। मिला 60 कैलोरी, दिया कितना वर्क। रिजेक्शन पे थोड़ा ना करोगे। Q1। 12। एक मिनट। हम्म, ठीक है, एफिशिएंसी कुछ थी ही नहीं भाई। 60 में से 48 तो फेंक दिए, वेस्ट कर दिए। नॉट नॉट एफिशिएंट एट ऑल भाई। हाँ, यस। कंप्लीट वेस्टेज है मतलब। 60 में 20% एफिशिएंसी हुई क्या? कुछ भी नहीं होती। यस। सब मुझसे पूछ रहे होंगे नींद पूरी तो हो गई भाई, ज्यादा ही हो गई।
सर ये वाली सर इस क्वेश्चन में हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, T1 माइनस T2 अपॉन हम्म T1 इज इक्वल टू 1 माइनस हम्म। 1 बाय गामा अपॉन गामा माइनस 1। वो तो वॉल्यूम के लिए होता है, गामा जब यूज करते हैं उसमें तो जब अच्छा। वॉल्यूम आ गया तो हो गया ना। हम्म। अदरवाइज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी इज दिस आल्सो, ये हम्म। 1 - T2/T1। T1 माइनस T2 अपॉन T1। राइट। T1 is the source temperature. हाँ। So I brought it to slightly इधर से एफिशिएंसी निकाल लो। It takes 400 calories from the हीट एंड Q1 is रिजेक्ट्स equal to 300 कैलोरी। 400। हाँ तो बढ़िया है ना, दिया हुआ है, Q2 भी दिया हुआ है, तो हाँ। काम कितने अच्छा, से करा? तो Q1 माइनस W 400। 100 लिख लो, चलो 100/400। 400। 400 मिला, 100 काम मतलब कर पाया। 25% एफिशिएंट है। अगर 25% एफिशिएंसी है तो यहाँ लगा लो 25%, 0.25 लिख लो यहाँ पे। 1/4 ही जीरो लिख लेते हैं ना। 1/4, हाँ ठीक है। 400 माइनस T2 अपॉन 400।
300 केल्विन। ठीक है, 27 डिग्रीज। T1 निकालना है। रुक जाओ, मैं निकाल रहा हूँ अभी।
हम्म, हो गया। समझ आ गया। सही है। 50%। गुड है।
अम, सर इसको Cascade. I think both are working between T1 and T2. Okay. ये मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उसमें वो क्या कहते हैं और कि जो Q1 और Q2 हुआ वो कैसे लिया जाएगा। वो तो एफिशिएंसी दी हुई है ना कि वर्क डन इज सेम। अच्छा। ये भी दिया हुआ है कि द हीट गिवन बाय वन इंजन इज यूज्ड बाय द अदर इंजन। तो जो पहले की रिजेक्शन है वो सेकंड का इनपुट है। सो वट एवर इज Q2 फॉर द फर्स्ट इज Q1 फॉर द सेकंड, बट द वर्क डन इज सेम। हम्म, ये भी दिया हुआ है T इज द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट इंजन एंड T1 इज द हॉट। तो T1 और T के बीच में काम कर रहा है ये, विच इज ऑल्सो द सोर्स फॉर द सेकेंड। तो दूसरा वाला काम कर रहा है T और T2 के बीच में, फर्स्ट वाला काम कर रहा है T1 और T के बीच में। ये भी ओके। दिया हुआ है। तो यू शुड राइट ऑल द पैरामीटर्स एंड you should say my information about first engine, my information about second engine. ठीक है। Okay, so source, सिंक, सारा लिख लो ऐसे। वर्क डन जो जो मालूम है, हम्म, वर्क डन Q1 Q2, ये सब यही होता है इसके अंदर। तो सोर्स T1, फर्स्ट का सोर्स जो है दैट इज आई थिंक दैट T1। इज टी। टी। नो नो, इट इज T1। नहीं, T1 अच्छा। ओके। तो इसका रिजर्वर। सिंक T है वर्क इज W। और इसका सिंक T2 पे है, इसका सोर्स T पे है, T1 है। कॉमन टेम्परेचर पे। वर्क दोनों का W है। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन वेल, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इजी हो जाएगा करना। वर्क भी बराबर दिया हुआ है। हाँ, अब ये अब यूज करनी है ट्रिक्स कि क्या करें। ये भी तो दिया हुआ है कि ये जो इसकी अगर Q2 है, हीट रिजेक्टेड फर्स्ट की, दैट इज द Q1 फॉर द सेकेंड इंजन। हम्म, द हीट रिजेक्टेड, अगर मैं इसका नाम रख लूं हीट रिजेक्टेड, फर्स्ट ने जो हीट रिजेक्ट करी वो सेकेंड की इनपुट ही तो दी हुई है। द हीट गिवन बाय द वन इंजन इज यूज्ड बाय द अदर इंजन टू प्रोड्यूस वर्क। सो मान लो फर्स्ट इंजन ने Q2 रिजेक्ट करा, तो वो किसका इनपुट बन गया? Q2 मतलब सेकंड इंजन का। राइट। अब ऑर्गेनाइज्ड है, वर्क सेम है। तो वर्क सेम है तो पहले वर्क लिख लो। इफ यू नो वर्क हेयर, यू नो Q2 हेयर, देन व्हाट इज द हीट रिजेक्टेड हेयर? नहीं, हम्म, ठीक। दिस इज माय इनपुट, दिस इज माय वर्क डन, सो दिस इज माय हीट रिजेक्टेड। सब पता है मुझे अब। व्हाट इज दैट आई नीड टू रिलेट? टेम्परेचर्स टी टी T is निकालना है related मुझे to अब। T1 and T2। हाँ, किस तरह से उसको हम निकाल लें कि वो अब मैथ्स लगानी है थोड़ी सी। एफिशिएंसी तो सेम नहीं है, वर्क डन सेम है। तो कैन वी राइट वर्क डन फॉर बोथ द, और कैन वी राइट वर्क डन फॉर बोथ द इंजन्स?
एंड यू आल्सो सेइंग Q3 इज इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है। वो तो होना ही है ना कि हम्म। एवरीथिंग हैज टू रिजेक्ट हीट, कांट या। यूज द कंप्लीट हीट, रिजेक्शन हैज टू बी देयर। हम्म। दिस इज जेई 2020। ठीक है। मैथ्स करवा रहे हैं और तो कुछ करवा भी नहीं रहे हैं। लिंक बिठा दो जी इन दोनों का। रुक जाओ, मैं मैथ्स में करूँगा अभी। आई थिंक एफिशिएंसी शुड बी अवॉइडेड, नहीं शुड बी यूज्ड, क्योंकि टेम्परेचर्स में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगी वो हाँ। दोनों साइड पे ना एफिशिएंसी। चलो, रुक जाओ। ये क्या लिखा है, एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इंजन? हाँ, और ईटा और ईटा कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? सेकंड इंजन। यार ये यहाँ लिखना चाहिए था ना। सेकंड इन उसके अंदर क्यों डाल दी फर्स्ट इंजन के अंदर? शिफ्ट इट, रब इट एंड राइट इट हियर। नहीं तो समझ ही नहीं आएगा वो कह रहा है। हाँ, अब एफिशिएंसी को इसमें भी लिखो, ये भी तो दिए हुए, इज इक्वल टू एक मिनट। टेम्परेचर की टर्म्स में भी तो लिखो। मैं टेम्परेचर टर्म्स में लिखूंगा, एक मिनट रुको। ओके, टेक योर टाइम। कुछ और सोच रहा हूँ इसमें।
निकला। नहीं, मैं ही सोच। टी में लाना है सारा यार डब्ल्यू को। हम्म। वो गेट rid ऑफ डब्ल्यू एंड ब्रिंग एवरीथिंग इन टी एफिशिएंसी, दैट विल मेक योर लाइफ इजी। ये सही लिखा है। तो ये डब्ल्यू तो सेम है दोनों में। पर टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वॉयर इज T2। अच्छा ठीक है। कैस्केड का मतलब वन आफ्टर अनदर हुआ ना भाई। दिस इज योर फर्स्ट इंजन, ये वर्क करता है, Q1 हीट है, T1 पे है। ये सेकंड इंजन है, इसको जो हीट मिली रिजेक्टेड, इसने भी इससे कुछ वर्क डन करा, ये दोनों वर्क डन बराबर है। और ये जो है दिस इज एट T1 एंड दिस इज एट T एंड दिस इज एट T2 विच इज, इसकी रिजेक्टेड हमने Q3 ली है। ये सिचुएशन है। सो दीज आर टू इंजन्स इन, सो इंटरमीडिएट टेम्परेचर पता लगाना है आपको बेसिकली। हाँ, पता है ये तो। ये भी तो पता है कि जो Q2 है हाँ। दैट इज सेम, ये दोनों हीट रिजेक्टेड, ये वाला जो Q2 है ये भी तो सेम है दोनों का। ये इनपुट है, हम्म। दिस इज द इनपुट। हाँ, वर्क डन अपॉन इनपुट। और इसमें W कहाँ पे आता है? इसमें भी तो यू कैन मैंने कन्वर्ट दोनों ना। का रिलेशन भी करा है। इसका भी तो टाइमिंग में। Q2 है, Q2 में कुछ आ सकता है। यू कैन पुट हेयर W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन क्या होगा? Q1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी, बिकॉज इसकी रिजेक्शन तो Q2 है हम्म। इंजन नंबर 1 की। तो ये क्यों नहीं लगाया Q1 माइनस Q2? रुको। सो दैट यू कैन यूज इट हेयर। ये वाला Q2 जो है और ये वाला Q2 लिंक हो जाएगा। अच्छा नहीं, यू यू हैव यूज्ड Q2 एज द इनपुट ऑफ द सेकेंड वन, करा हुआ है।
Q2, you found Q2, which is Q2 is the heat rejected by the second, is the average of the two. हम्म अच्छा अच्छा, इसका एवरेज आ रहा है ये. Okay, so the heat rejected is the average of the two. ठीक है. both perform equal amount of work से use हो गया. How T is related to T1 and T2. How T is related to भाई T1 देखो, and T2. नहीं नहीं, हमें वन किसी तरह एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - Q2 upon Q1 इज इक्वल टू 1 - T2/T1, जो नॉर्मल कार्नट का रूल होता है, I've यही होता है already ना. used that. यू यूज दैट. अच्छा, हाँ लिखा हुआ है. हाँ, Q3 I have to Q3 was eliminate. unknown मेरे ख्याल से. The only unknown was Q3, right? Hmm. The heat rejected was the unknown, if I were to say that. So if you were to write the efficiency of the first engine, नहीं, एक मिनट होल्ड. this is known, Q2. मतलब कम से कम known तो नहीं है, given तो है. So I can write efficiency like this and this. नहीं नहीं, एक मिनट. अच्छा रुको. एक में efficiency आएगी 1 - Q3 upon Q2, और Q3 को मैं यहाँ से उठा के डाल दूंगा, और दूसरे में efficiency आएगी 1 - Q2/Q1. पर दोनों की efficiency सेम नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है. लिखा कहीं efficiency सेम है नहीं ना, वर्क डन इज सेम. वर्क से लिंक करना पड़ेगा दोनों को. W इज इक्वल टू. ओके, आई गॉट इट. आई थिंक. बड़ा अजीब सा अलजेब्रा है यार, फंसा दिया. नहीं नहीं, मुझे समझ आ गया क्या करना है. सर प्लीज आप इसको इरेज कर दो जो आपने लिखा है इधर. इधर बताओ. ये जो आपने पूरे डायग्राम्स वगैरह हमने इसको इरेज कर दो. जो हो गया. यू कैन सेलेक्ट एंड डिलीट. ठीक है. आई गॉट अ वे. इट शुड वर्क.
सर, हम्म। और ये जो इन दोनों ईटास निकाले, दोनों इंजन्स की एफिशिएंसी, उनका रेशो जो आ रहा है वो Q2/Q1 आ रहा है। ओ। एक नया ट्विस्ट आया है इस क्वेश्चन में। ट्विस्ट। और ट्विस्ट करें। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है गट फीलिंग से। ओके। फिर भी थिंक Q2/Q1 कुछ बन सकता है क्या? अरे यार, ये देखो ना, ये यूज करना था जो आ रहा था ना, यहाँ तक तुम पहुंच गए थे ना, जहाँ तक ये ये वाली इक्वेशन जो तुमने बना ली है, ये वाली एक इक्वेशन आई थी तुमने, Q3 वाली, 2Q2 हम्म। वाली। नाउ व्हाट यू डू इज यू राइट इट ना, Q2 इज इक्वल टू Q1, सॉरी, 2 इज इक्वल टू Q1/Q2 प्लस Q3/Q2। ये क्या है? व्हाट इज दिस? Q1/Q2 कितना होता है? Q1/Q1 ये Q1 ही है ना? हाँ, कुछ नहीं होता मतलब ये। जो Q1, this is the heat which is rejected by it, and this is T, this is the heat supplied, right? यस। T1/T। फाइन, सो व्हाट? अच्छा, अरे T1/T हो जाता है ये Q2। क्यों? ओ, एफिशिएंसी का मैंने अभी लिखा जो था, एफिशिएंसी इज बट इक्वल टू 1 - Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 - T2/T1। तो ये दोनों बराबर ही तो हैं। ये काट अच्छा। दो अगर 1 1, तो Q2/Q1 इज इक्वल ओ, टू टी टू बाई ओके, टी समझ। वन ठीक है। प्लस ये इसकी रिजेक्टेड है, T2, और इसको मिली कितनी है, T, और ये 2 है। तो 2T इज इक्वल टू T1 + T2। T इज इक्वल टू T1 + T2/2। योर गट फील वाज राइट, आई थिंक। ए, हम्म। you almost reached there. I think this is the step where you took a beating. बैड ट्रिप। ये फेल टू लोड हो गया सर। यार इसका ये बड़ा ना, बहुत बड़े वाला पंगा है इसका ये तंग करने लग जाएगा ना अगर। नेक्स्ट पेज पे चला गया हूँ मैं। ठीक है, होपफुली अपलोड यही हो था गया। ना उसका आंसर? यस।
आई थिंक दिस वन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट, इसमें कोई सर जो सोर्स का टेम्परेचर है वो क्या सेम ही रहता है दोनों केसेस में? सिंक का पड़ा है, सिर्फ चेंज करा है। हाँ, सोर्स का तो सेम ही है ना। हाँ, ठीक है। छुपा के रखा हुआ है बस। मान लो T1 और T2, हाँ, एफिशिएंसी कर ली चेंज बाय नहीं ठीक है, मैं बस T2 से इतना पूछ रहा था कंट्रोल कि कर सोर्स लिया। का टेम्परेचर सेम ही रखा है ना। हाँ, मतलब T2 बस से T2 से ठीक है। कंट्रोल कर ली। हाँ, यस। ये बड़ा कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, दैट्स ऑल। हाँ हाँ, ठीक है। 2019, एक इवनिंग शिफ्ट का है, अच्छी बात है, 220 का। कैलकुलेशन ओरिएंटेड ही आनी चाहिए जी मेंस में। आई विल थ्राइव ऑन दिस। 62 degrees temperature of the sink.
अभी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। नहीं, अच्छा क्वाड्रेटिक। हाँ। तो लीनियर इक्वेशन बन रही है। यूज कर ली वो भी। Okay. ओ T1 - 5 मेरे सर मेरे को डी लग रहा है आंसर। ठीक। डी। ये आसान क्वेश्चन ही था थोड़ा। आसान तो था। कहाँ निकला आंसर? आई एक होप यू आर चीज है। नॉट डूइंग इट इन डिग्रीज, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मूले जो है केल्विन में लगाने अलाउड होता है। ओके। कोई डिग्री में तो नहीं दिया हुआ था कोई? नहीं, डिग्री में ही दिया हुआ था, तभी मैं समझ थोड़ा अजीब आ रहा था। वो रिड्यूस तो मतलब यू कैन T1 - 62 वो तो चल जाएगा। इवन T1 केल्विन, इफ यो यू रिड्यूस इट बाय 62 डिग्री। 73, तब 335। बट फिर भी सेम ही चीज रहेगी ना, हम्म। कि रिड्यूस भी किया है तो। बट डी होना चाहिए आंसर। निकाला कहाँ है?
ये तो कैलकुलेशन चेक कर लो। इसमें T1/T2 कितना आया? T2/T1 टी फाइव टू बाई बाई टी सिक्स वन एफिशिएंसी कितनी निकाल ली? एफिशिएंसी तो 1/3 है ना। ये तो बहुत आसान था मतलब। वेयर आर यू स्ट्रगलिंग इन दिस? नहीं, सब तो कर लिया हमने। आंसर का है? आंसर ही तो नहीं है। फिर तो ये लेट मी देखो। जस्ट एक मिनट, लेट मी गो थ्रू योर आंसर ना। हाँ। लेट मी रीड इट। लेट्स सी योर अटेम्प्ट, कहाँ गलती है? एफिशिएंसी, एक तो क्वेश्चन बड़ा कर लेता है, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। व्हाट वाज सो सिंपल? कार्नट इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6। ठीक है जी, लगा लिया। 1/6 इज इक्वल टू T1 माइनस, फिर क्या करा? द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्रीज। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? डबल्ड। तो 1/3 कर ली, ठीक है ये। इज रिड्यूस्ड है रिड्यूस वन है ना। माइनस, T1 - T2 - 62। ये हो गया ना? तो यस। -2/3 इज इक्वल टू माइनस टी अरे टू अब ये क्यों माइनस लिख रहे हो, ये देखो। क्या? ये भी सेम चीज है ना। हाँ, सेम ही है। हाँ। 3T1 माइनस 3T2 इज इक्वल टू 186। 2T1, ये इधर ले गए, 2T1 माइनस 3T 186। तो 2T1 माइनस 382 इज इक्वल टू माइनस, एंड T2 इज इक्वल टू 5/6 T1। ये 3 भी तो लिखना है यहाँ पे। अच्छा, 3 लिखा है। 3 और 2 आ गया, 5/2। सो 4T1 माइनस 5T इज इक्वल टू -T इज इक्वल टू माइनस 2 9 392, राइट? सो और T यहाँ पे इज इक्वल टू ऑप्शन में थ्री नहीं है ना। नाइन्टी टू ये केल्विन में आया ना, क्योंकि केल्विन में है पर। हाँ, अच्छा। बताया तो केल्विन में होता है ये। ठीक है। अच्छा, वो अब सेम ही सब्ट्रैक्ट चीज है। करना, 392 माइनस टू हाँ, सेवेंटी बोलो। थ्री कितना होता है? नाइन्टी ये नाइन मैं ये होता है आपका। नहीं, 11। 19 कुछ भी। हाँ, मतलब 19। यस। 392 है, 12 9 8, ये भी तो आएगा 119। ये पर 119। एक मिनट। मेरे को ऑप्शन में भी नहीं है 119। 3 2 6, 1/6 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू 5/6 T1। यहाँ T2 को डाल दिया 5/6, 3/2, 2 2 4, 2 उधर चला गया। 2 जब इधर गया तो ये कितना हो गया? 392, हम्म। नहीं 372, सॉरी। हम्म। हम्म। 372 वही मैं समझू। हाँ। 99 99 केल्विन। और ये टी डिग्रीज। टू है। ये हमारा T1 है तो ए ऑप्शन। हाँ, कैसे नहीं आया? अच्छा, तभी मैं सुनो गड़बड़ से केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया था मैंने। जी, और सही सेल्सियस में। सबको सही करा हुआ था, नथिंग रॉन्ग। हाँ। कैरेट इंजन। कुछ कॉन्फिडेंस और आया अपने अंदर की कर सकते हैं भाई। हाँ, मैंने एक चीज सीखी, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होता है सब। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन सारा पे आंसर लाइन देखो। क्वेश्चन में ही होता है। हाँ,
इधर उधर से इक्वल टू कर दिया, और मेन एम्फोसिस इज टू रीड इट वेरी वेरी डिटेल्ड, की तो बल्ले मैं पड़ आज गया भाई। HC वर्मा की एक तो वीडियो थी उनकी, जिनमें वो लाइक इम्पोर्टेंस वाले क्वेश्चन पढ़ने की। इट इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो गए काम से भाई। ये पूछ क्या रहा है, यही नहीं याद रहेगा, कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? ठीक है। लो जी। बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। 373। हाँ, एक ही बात है। और 273 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर यस। यस। ऑपरेटिंग बिटवीन, it means the source and the sink respectively, राइट। right? सर इस लाइन का मतलब क्या है? एफिशिएंसी लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। जो भी इंजन बनाया जाता है ना, its efficiency is always the maximum efficiency is always of a Carnot engine between that those two temperatures. सर बी एंड डी आर करेक्ट। ये डी कैसे निकला? सर डी मैंने कैलकुलेट किया है, इट्स 26% अप्रोक्सीमेटली। सी भी सही है भाई। इक्वल टू नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? अप्रोक्सीमेटली तो आएगी है ना, इक्वल टू भी इंक्लूड करना है। ओ,
क्या है, बट मैं इनके आंसर से सहमत नहीं हूँ, बट ठीक है। BCD। ठीक है। अदरवाइज सही है। जो रियल इंजन्स होते हैं ना, जिनकी हम कैलकुलेशन करते हैं, 27% इज द अप्रोक्सीमेट भी नहीं है वो वो, ठीक है, मतलब। बट मतलब लेस देन बट फिर इक्वल भी टू मैं, का भी साइन इंक्लूड करना है। चलो ठीक है, वो ठीक अगर है, ये कह ये रहे तो ट्वेंटी सिक्स ठीक है। पॉइंट एट है, लेकिन इतने अप्रोक्सीमेशन चलती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली। ठीक है, आई होप यू हैव गेन्ड सम कॉन्फिडेंस इन कार्नेट नाउ। हाँ, कल We से just नया need to do चैप्टर। one more topic, which is the refrigerator, heat pump, and then we will finish this topic. चैप्टर खत्म ना? हाँ, नहीं, अभी एक टॉपिक रहता है हमारा। अच्छा, We मतलब will, उस टॉपिक का चैप्टर खत्म। हाँ, उसके बाद खत्म। कल खत्म मतलब कल सुबह खत्म कर देंगे। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग एंड फिनिश द चैप्टर। ठीक है, फिर उसका सर हम ऑसिलेशंस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। बट वो तो क्या, छोटा चैप्टर है, ऑसिलेशन वे थोड़ा बड़ा होगा। ऑसिलेशन छोटा है, वो बड़ा है। हाँ, मतलब वो दोनों एक साथ कर लेंगे। Yes. ओहो, काइनेटिक थ्योरी इज वेरी स्कोरिंग भाई। वेरी स्कोर, चलो ठीक है, वो कर लेते हैं डोंट पहले लीव फिर। इट। कंटिन्यूटीज विद ओनली गामा वामा के बारे में बहुत कुछ नहीं पता अभी। एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, चलो। चलो जी।